اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں۔ 100 سال پہلے تک تو ویڈیو کال کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن اگر میں کہوں کہ قرآن کریم نے 1400 سال پہلے ہی اس ٹیکنالوجی کی طرف اشارہ فرما دیا تھا، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ہوائی جہاز سے ایک مہادویپ سے دوسرے مہادویپ تک انسانوں کا سفر، اندھے پن کا علاج اور بہت سی دوسری سائنسی ترقیاں بھی، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں بے حساب راز چھپے ہوئے ہیں۔ یہ ہر دور کے لیے ہدایتوں اور نشانیوں سے بھرپور ہے۔ اب تک ہم نے اس کے بہت سے سائنسی معجزات دیکھے ہیں، کائنات کے پھیلنے سے لے کر انسانی نسل کی ترقی تک، گہرے سمندر کی تاریکی گہرائیوں سے لے کر فضا کی پرتوں تک کئی سائنسی حقیقت قرآن مجید میں صدیوں پہلے ہی بیان کر دیے گئے، جبکہ انسانوں نے انہیں بہت بعد میں کھودا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس میں ابھی اور بھی بہت کچھ چھپا ہے؟ کیا ہم نے ابھی صرف سطح کو ہی چھوا ہے اور اصل خزانہ تو ابھی سامنے آنا باقی ہے؟ کیا ہو اگر اس کتاب اللہ کی آیت میں آنے والی ٹیکنالوجی کے بھی اشارے موجود ہوں؟ اگر آپ تیار ہیں تو آئیے انہیں ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یعنی اس کے علم کے بغیر کوئی پتھر بھی نہیں گرتا، اور نہ زمین کی گہرائیوں میں کوئی دانہ اور نہ کوئی تر و خشک چیز جو اس کھلی کتاب میں درج نہ ہو۔ تو اس آیت کے مطابق سب کچھ قرآن میں ہے، مگر وہ تفصیل اور ناموں کے ساتھ نہیں، بلکہ نشانیوں، اشاروں اور بنیادی اصولوں کے ذریعے۔ مشہور اسلامی عالم بیدی الجمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت سی سائنسیں کھوجیں انبیاء کے قصوں اور ان کے معجزات پہ چھپی ہوئی ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیوں اور کرامتوں کے ذریعے انسانیت کو اشارہ دیا کہ علم اور ٹیکنالوجی کی بلندیوں کو ایک دن حاصل کیا جائے گا۔ اب ہم قرآن میں ذکر شدہ پیغمبروں کے 7 معجزات اور ان میں چھپے اشاروں کو دیکھیں گے۔ جیسے جیسے ہم آخری معجزات کی طرف بڑھیں گے، یہ نشانیاں اور بھی زیادہ حیرت انگیز محسوس ہوں گی۔ سورہ النسل کی آیت 38 سے 40 میں ایک بے حد عجیب اور دلچسپ واقعہ بیان ہوا ہے۔ ان آیت کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام دور دراز کی سرزمین سے رانی کا تخت منگوانے کا حکم دیتے ہیں، تو ایک شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہتا ہے، میں اسے پلک جھپکتے لا کر دکھا سکتا ہوں، اور فوراً ہی وہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود ہو جاتا ہے۔ یعنی یمن میں موجود تخت کسی طریقے سے یا تو حقیقتاً دمشق میں سامنے آیا یا اس کی سبھی وہاں ظاہر ہو گئی، جبکہ دونوں سرزمینوں کے درمیان ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں موجود لوگوں کو بھی دیکھ سکتے تھے، ان کی آوازیں بھی سن سکتے تھے۔ قرآن مجید یہاں بہت عظیم نشانیاں بیان کرتا ہے۔ 1400 سال پہلے نازل ہونے کے باوجود یہ اشارہ دیتا ہے کہ چیزیں یا ان کی سبھی کس طرح بجلی کی تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ سکتی ہے، یا کسی چیز کو لمبی دوری پر بھیجا جا سکتا ہے، اور یہ ایک حقیقی تاریخی واقعے کے ذریعے ہوتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ اور ٹی وی کے ذریعے کچھ ہی لمحوں میں تصویریں اور آواز سنائی جا سکتی ہیں۔ کیا قرآن کریم میں جس واقعے کا ذکر ہے وہ لائیو براڈ کاسٹ، پروجیکٹر، کیمرے یا آج کی جدید ٹیکنالوجی جیسے ہولوگرام سے بہت الگ ہے؟ لیکن سوال یہ ہے کہ جب 1400 سال پہلے ان چیزوں کا خیال تک نہ تھا تو قرآن میں ان کا تذکرہ کیسے ہوا؟ ایک مرتبہ پھر ہمیں صاف اور روشن ثبوت ملتا ہے کہ یہ کتاب کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم میں ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں کی زبان سمجھتے تھے اور ان سے کلام کر سکتے تھے۔ سورہ النمل کی آیت 18 میں بیان ہے کہ انہوں نے چیونٹیوں کی بھاشا کو سمجھا، اور آیت 22 میں پرندوں کی بھاشا کو۔ تو یہاں آخر کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ اصل میں جانوروں کی زبان کو سمجھنا اس بات کا نشان ہے
कि इंसानियत को आइंदा इनके कलाम और काबिलियत को समझने की सलाहियत अता होगी। आखिरकार हमें मालूम हुआ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उनके कलाम को जानते थे। उन्होंने इन काबिलियतों को पहचाना और अपनी ज़िंदगी में उनका इस्तेमाल किया। अगर गौर करें तो जब इंसान जानवरों की काबिलियत को पूरी तरह समझ लेगा तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बहुत से कामों में उनका फ़ायदा उठा सकेगा। और ये अमल तो इंसानियत ने पहले ही शुरू कर दिया है। कबूतरों को खत और पैगाम पहुंचाने में इस्तेमाल किया गया, तोते को बोलना सिखाया गया, रेशम के कीड़ों से लिबास तैयार किए गए। इसी तरह इंसान ने कुत्तों की भाषा को कुछ हद तक समझ लिया और उनकी तेज सूंघने की कुव्वत को नशीली दवाओं और खतरनाक चीजों की पहचान में लगाया। कुछ चूहों की नस्लें अपनी सख्त तेज सूंघने की कुव्वत की वजह से खान ढूंढने में इस्तेमाल होती हैं। डॉल्फिन की आला सोनार कुव्वत से सबमरीन की तलाश, बचाव ऑपरेशन और समुद्री खतरनाक माइंस की पहचान की जाती है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जानवरों की जबान समझना और उन्हें खास कामों में इस्तेमाल करना इस हकीकत को बयान करता है कि इंसान आइंदा भी उनकी और खूबियों को खोज सकेगा, उनसे नए तरीकों से फायदा उठा सकेगा। जमीन पर हजारों जानवरों की किस्में मौजूद हैं। जैसे जैसे इंसान उनकी ज़बान समझना सीखेगा, उन्हें तरबियत देगा, उनकी मदद से इंसानियत जो कुछ भी हासिल करेगी वो हमारी तसव्वुर से कहीं आगे होगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक और मौजज़ा अता हुआ था, हवा पर काबू पाने की कुव्वत। इसके जरिए वो बहुत कम वक्त में लंबा सफर तय कर लेते थे। सूरह सबा में अल्लाह ताला फरमाता है, और सुलेमान के लिए हमने हवा को मुसख्खर किया, उसका सफ़र सुबह का 1 महीने के बराबर और शाम का सफ़र भी 1 महीने के बराबर था। ये आयत बयान करती है कि जो सफ़र आम तौर पर 1 महीने में तय होता वो दिन के कुछ हिस्सों में पूरा हो जाता था। क्या ये आइंदा की टेक्नोलॉजी जैसे हवाई जहाज़ों की साफ निशानदेही नहीं है? गौर करो, आज नई टेक्नोलॉजी के साथ इंसान हवा का इस्तेमाल करना सीख चुका है, मगर सही मवाद मिलाकर हवाई जहाज बनाए और समय को बहुत कम कर दिया। वो सफ़र जो पहले महीनों लेते थे अब चंद घंटों में पूरे हो जाते हैं। इंसान एक ही दिन में कई मुल्कों का सफ़र कर लेता है। एक और मौजज़ा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अता हुआ था। उन्हें आग में डाल दिया गया, लेकिन आग ने उन्हें जलाया नहीं। जाबिर हुक्मरान नमरूद उनसे बेहद गुस्से में हुआ और अपने कौम को हुक्म दिया कि एक बड़ी आग जलाओ। लेकिन जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो हैरत अंगेज वाक़या सामने आया। आग ने उन्हें जरा भी नुकसान न पहुंचाया। ये बिलाशुबह एक मौजज़ा ही था, लेकिन इस मौजज़े में आइंदा के लिए भी सारा छुपा हुआ था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम न तो आग से जले और न ही उनके कपड़े। ये इंसानियत के लिए मकसद और इशारा था कि आइंदा ऐसे मवाद बनाए जा सकते हैं जो आग से महफूज रखें। असल में 20वीं सदी के आसपास में पहली बार आग रोधी कपड़े तैयार किए गए, खास तौर पर फायर फाइटर्स के लिए। 1960 की दहाई में नोमैक्स और केबलर जैसे खास कपड़े ईजाद हुए। नोमैक्स 370 डिग्री तक की गर्मी बर्दाश्त करता है और आग पकड़ने से बचाता है, वहीं केबलर 450 डिग्री सेल्सियस की गर्मी सह सकता है। इन इस्तराई करामत की वजह से आज फायर फाइटर्स आग का मुकाबला ज़्यादा असरदार तरीके से करते हैं। बचाव अमल के दौरान कई मिनट महफूज रहते हैं। सूरह अल बकरा में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी ऐसा एक चट्टान पर मारते हैं और फौरन 12 चश्मे फूट पड़ते हैं। जरा सोचो, एक सूखी और बेजुबान चट्टान जो वीरान रेगिस्तान में थी, असा के छूने से पानी का जरिया बन गई। 12 चश्मे बहने निकले और प्यासे लोग उनसे सैराब हुए। लेकिन इस मौजज़े में कौन सा पैगाम छुपा था? ये इस हकीकत की तरफ इशारा करता है कि ज़मीन की गहराइयों से पानी निकलना मुमकिन है। दूसरे अल्फाज में कहें तो उस ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी की तरफ इशारा था जो आज इंसान इस्तेमाल करता है। ये तरीका 19वीं सदी से जारी है और इसके ईजाद होने के बाद से ड्रिलिंग मशीनों ने इंसानियत को ज़मीन की गहराइयों से पानी, तेल, दूसरी खुदाई खजानों तक पहुंचने में मदद की है। तो अब जब लकड़ी के असासे से तान से पानी निकलते देखा गया तो इसने इंसानों के जहन में
आइंदा की टेक्नोलॉजी का तसव्वुर पैदा किया। उस आयत में ड्रिलिंग मशीनों की तरफ साफ इशारा था, लेकिन उस वक्त तक वो बनी भी न थी। सूरह अल इमरान और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जिन्हें ईसा मसीह भी कहा जाता है, फरमाते हैं, और मैं अल्लाह की इजाज़त से पैदाइशी अंधों और कोढ़ के मरीजों को शिफा देता हूँ और मुर्दों को जिंदा भी करता हूँ। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मशहूर मौजज़ात में से कुछ है। अब हम इनमें से एक पर गौर फरमाते हैं। पैदाइशी अंधों का शिफा पाना। आज के दौर में जिन थेरेपी और स्टेम सेल इलाज जैसी जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से कुछ पैदाइशी अंधापन का इलाज मुमकिन हो चुका है। इसी तरह 20वीं सदी तक कोढ़ का कोई इलाज न था, लेकिन अब खास दवाओं से 6 महीने से 2 साल में इसका इलाज हो सकता है। हकीकत यह है कि आज कुछ खास इलाकों के सिवा कोढ़ के मामले तकरीबन खत्म हो चुके हैं। बेदी उज जमा बयान करते हैं कि इस आयत का पैगाम यह है कि सबसे सख्त बीमारियों और मुश्किल तिब्बी मसाइल का भी इलाज मुमकिन है। बीमारी कैसी भी हो, उसकी शिफा मौजूद है, बशर्ते इंसान लगातार तलाश करता रहे। आखिरी और सबसे हैरान कुन निशानी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मोजिज़े में है, जब उन्होंने जिन्नात को अपने ताबे कर लिया और उन्हें नेक कामों के लिए लगाया। अल्लाह की मशीयत से सुलेमान ने जिन्नों को समुद्र में गोता लगाने के लिए, कीमती जवाहरात निकालने, शानदार इमारतें बनाने और हर तरह के मुश्किल काम करने का हुक्म दिया। बेदियुज्जमा फरमाते हैं कि इन मौजज़ात में बहुत से इशारे मौजूद हैं और जिन्नों को बाकायदा ताबे करके इंसानों की मददगार कुव्वत बनाया जा सकता है। मगर ये सब ताबीज़, टोना टोटका या जादू से नहीं, बल्कि अल्लाह के कलाम में छुपे हुए रहस्यों और इशारों की रोशनी में है। हालांकि आज तक हमें नहीं मालूम कि ये किस तरह होगा, लेकिन जब तक ये राज महफूज है, मुमकिन है आइंदा हकीकत बन जाए। इस वक्त आपके दिल में ये सवाल उठ सकता है, कुरान में ये बातें साफ साफ क्यों नहीं कही गईं? असल में कुरान करीम का मकसद सीधा साइंस या टेक्नोलॉजी पढ़ाना नहीं। आखिरकार ये कोई तालीमी किताब नहीं है। इन मजामीन की कुरान का असल मकसद है तौहीद, अल्लाह की वहदानियत, आखिरत, नबूवत, इंसाफ और इबादत। मगर चूंकि इल्मी और तकनीकी खोजें भी अल्लाह की नेमत हैं और अब इंसानी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी हैं, इसलिए कुरान उन्हें नज़रअंदाज भी नहीं करता। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इशारों और अलामतों से इनकी तरफ इशारा फरमाया और इनके पीछे 2 हिकमतें दी। पहली ये कि अगर कुरान में टेक्नोलॉजी और साइंस की खोज का सीधा जिक्र होता तो खास तौर पर पिछले चंद सदियों से वाबस्ता हैं, तो पहले 1200 साल के लोग उन्हें समझ न पाते, बल्कि कुछ लोग तो उन्हें गैर हकीकी करार दे देते और इससे कुरान का हर जमाने के लिए रहनुमा होना मुतासिर होता। जरा सोचो, 100 साल पहले अगर कोई कहता कि इंसान वीडियो कॉल कर सकेगा तो कोई यकीन करता क्या? इसी वजह से ये बातें कुरान में सीधे नहीं बल्कि इशारों के जरिए बयान फरमाई गई हैं। अगर सारी टेक्नोलॉजी और सारा साइंस की खोज साफ साफ बता दी जाए तो क्या ये इम्तिहान के मकसद के खिलाफ ना होगा? जिंदगी वो इम्तिहान है। अगर सब कुछ बिल्कुल रोशन होता तो शक और इनकार की कोई गुंजाइश ही न रह जाती। सबको मजबूरन मानना पड़ता और इससे इख्तियार का मकसद खत्म हो जाता। ये मालूम करना नामुमकिन हो जाता कौन सच्चे ईमान के साथ मान रहा है और कौन मजबूरी में। इसलिए कुरान की बातें ऐसे अंदाज में बयान की गई हैं कि लोग गौर और फिक्र करें, तलाश करें, अपने इख्तियार में फैसला लें। आखिर में इन सब बातों से सबसे अहम हकीकत ये समझ में आती है कि ये सब नसीहतें और नबूवत के इशारे जो कुरान में मौजूद हैं वो साफ पैगाम देते हैं। ये किताब किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता, क्योंकि कोई इंसान ऐसा नहीं हो सकता जो हर जमाने और हर जगह के लिए इल्म और हिकमत बयान कर सके। एक इंसान के अल्फाज में वो अजली हिकमत और अबदी सबक नहीं हो सकते जो हमेशा के लिए कायम रहें। ये कलाम उसी का हो सकता है जिसने सब कुछ बनाया, सब कुछ पैदा किया, जो सब कुछ जानने वाला है, जो सब कुछ कर सकता है, जो सब कुछ मिटा सकता है, जो सब कुछ बना सकता है, यानी
اللہ رب العزت ہم نے اب تک قرآن کے معجزات کا صرف ایک چھوٹا حصہ ہی سمجھا ہے۔ جیسے جیسے نئی کھوجیں سامنے آئیں گی، ہمیں ان ابدی کتاب میں اور چھپے ہوئے معجزات نظر آئیں گے، اور جب ایسا ہوگا تو کچھ لوگ ایمان میں اور مضبوط ہو جائیں گے، اور کچھ لوگ حق سے منہ موڑنے کے لیے بہانے تلاش کرتے رہیں گے۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری قرآن کریم اور آج ٹیکنالوجی سے اس کے تعلقات پر بنائی ہوئی ویڈیو۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری اس ویڈیو سے کوئی جانکاری حاصل ہوئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے یار دوست رشتہ داروں کو بھی شیئر کریں تاکہ انہیں بھی جانکاری حاصل ہو، کیونکہ اگر ہم اپنے اتہاس کو جانیں گے نہیں تو خود کو پہچانیں گے کیسے۔ اللہ حافظ دوست۔